क्लोजिंग कैपिटल ना प्रायोजक छे ट्रेड बुल्स। अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है। ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત છે આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં। હું યોમિક આપની સાથે સતત બીજા દિવસે આપણને ઉચ્ચતમ સ્તરથી નફા વસૂલી જોવા મળી છે, પરંતુ આજે બીજો એવો દિવસ છે કે જ્યાં આપણને નીચલા સ્તરથી રિકવરી પણ જોવા મળી છે। એટલે કે ક્લિયર કટ આપણને સિચ્યુએશન એવી જ જોવા મળે છે કે હમ ગિરે ગए તો क्या हुआ, सामने हम खड़े भी हो जाएंगे। એવી જ સ્થિતિ આપણને આજે આપણના ભારતીય શેર માર્કેટમાં જોવા મળી છે। દરેક પર આપણે ચર્ચા કરીશું, પણ શરૂઆત કરીશું ટોપ હેડલાઇન્સથી। આ હેડલાઇનના પ્રાયોજક છે ચારુસેટ યુનિવર્સિટી। ચૂઝ ચારુસેટ, ચૂઝ સક્સેસ। માર્કેટમાં ઉચ્ચતમ સ્તરથી નફા વસૂલી, નિફ્ટી ઉતાર ચઢાવ સાથે 24,300 ને પાર ફ્લેટ। બેંક નિફ્ટી 52,200 પર સપાટ। બેંક, ફાર્મા અને રિયલ એસ્ટેટના શેરોને બનાવ્યું દબાણ। ડાઉ ફ્યુચર્સ મામૂલી મજબૂતી સાથે જોવા મળ્યું। યુરોપિયન બજારમાં ફ્લેટ કારોબાર, એશિયનમાં મિશ્ર થયા કારોબાર। સતત ત્રીજા દિવસે આપણને જોવા મળી પીએસયુ બેંકમાં સારી ખરીદારી। કોલ ઇન્ડિયા, ઓએનજીસી, બીપીસીએલ નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનર્સ। વાયદા બજારમાં એફસીએલ ટોપ ગેઇનરમાં। શિપ બિલ્ડિંગ શેરોમાં શાનદાર ઉછાળો। શિપિંગ કોર્પોરેશન 20%ની અપર સર્કિટ સાથે લાઈફ હાઈ પર। જેઈ શિપિંગ, ગુજરાત પીપાવાઓમાં પણ સારી ખરીદારી। બજેટમાં શિપિંગ કંપની માટે મોટી જાહેરાત થવાની સંભાવના। ફાર્મા શેરોમાં ભારે ઘટાડો। સન ફાર્મા નિફ્ટીનો ટોપ લૂઝર્સ। બાયોકોન, ઝાયડસ લાઈફ, ઓરોબિંદો ફાર્મામાં પણ કમજોરી। તો આવો આ સાથે જ આપણે સીધા જઈએ અમારા ઇન્ટરેક્ટિવ વોલ તરફ અને જાણવાનો ટ્રાય કરીએ કે જે રીતે આપણને 2 દિવસથી સતત નફા વસૂલી જોવા મળી છે, પરંતુ સામે આપણને રિકવરી પણ જોવા મળી છે, જે એક સારી એવી બાબત કહેવાય। કારણ કે આપણે 2 દિવસથી આપણે કન્ટિન્યુ જોઈ રહ્યા છે કે 24,400 એક લેવલ એવું છે કે ત્યાંથી આપણને કન્ટિન્યુ આપણને એક રેઝિસ્ટન્સ નડી રહ્યું છે અને નીચે 24,200 કે ત્યાંથી આપણને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે। આપણે ચાર્ટ પ્રમાણે હું તમને સમજાવીશ અને ચાર્ટ પર આપણે જાણવાનો ટ્રાય કરીએ કે કઈ રીતના આપણને વલણો જોવા મળ્યા છે, કે જેમાં સૌ પ્રથમ તમને નિફ્ટીના ડેઇલી ચાર્ટ ઉપર તમને નજર કરાવવા માંગીશ કે એમાં આપણને આઈડિયા આવશે કે આજે આપણને દિવસભર કઈ રીતનો આપણને કારોબાર જોવા મળ્યો છે। તો નિફ્ટીના ડેઇલી ચાર્ટ આપણે નજર કરીએ તો એમાં પણ આજે આપણને ઓપનિંગ જોવા મળ્યું ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ હતું, જે ગઈકાલે પણ આપણને ફ્લેટ ઓપનિંગ જોવા મળ્યું, પરંતુ આપણને જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ આપણને 1%ની કમજોરી આપણને ગઈકાલે જોવા મળી હતી। એ જ રીતે આજે પણ આપણને ઓપનિંગ તો ફ્લેટ થયું, પરંતુ આજે પણ આપણને ઉપરથી સેલ ઓન રાઇઝ જોવા મળ્યું છે। હવે આવા સમયે આપણે નીચે મેં તમને વાત કરી હતી સવારે કે 24,200 જ્યાં આપણને એક સપોર્ટ મળી શકે છે, અને આજે આપણને એવું થયું છે કે જે ઓલમોસ્ટ 24,170 આજુબાજુ આપણને સપોર્ટ લેવા મળ્યો અને ત્યાંથી આપણને જોયું તો ઓલમોસ્ટ રિકવરી સારી જોવા મળી અને અત્યારે આપણે ઓલમોસ્ટ 24,300 ને ઉપર આપણે કારોબાર કરી રહ્યા છે। હવે અહીંયા બીજી એક વસ્તુ તમને હું હાઇલાઇટ કરવા માંગીશ કે એક ઇનસાઇડ બાર ક્રિએટ કેન્ડલ થયો છે, કે જે તમે નજર કરી શકો કે ગઈકાલે આપણને એક ઇનસાઇડ કેન્ડલ બની હતી, જેના બાદ આપણને એની અંદર ઇનસાઇડ કેન્ડલ બનતી જોવા મળી છે। એટલે હવે અહીંયાથી આપણને જે ત્રીજી કેન્ડલ એટલે કે આવતીકાલની જે કેન્ડલ બને એ જોવાનું મહત્વનું રહેશે। અગર જો આવતીકાલની કેન્ડલ આપણે આજે ગઈકાલનો જે હાઈ છે જો ઓલમોસ્ટ 24,460 હતો, એની ઉપર જો આપણે ક્લોઝિંગ આપે તો આપણને ફર્ધર 24,700 સુધીના લક્ષ્યાંક જોવા મળી શકે। અને નીચેની તરફ જો 24,130 આજુબાજુ આપણે જે લો બનાવ્યો હતો ગઈકાલે, ત્યાં જો સપોઝ આપણે એની નીચે આપણે સરકીએ તો એની નીચે આપણને ફર્ધર આપણને અહીંયાથી મંદી જોવા મળી શકે છે। જો ઓલમોસ્ટ હું વાત કરું તો આપણને 23,850 સુધીને આપણને અહીંયા લેવલ જોવા મળી શકે છે, એટલે કે નીચેની તરફ 23,850 અને ઉપરની તરફ વાત કરું તો આપણને 24,700 સુધીના લક્ષ્યાંક જોવા મળી શકે છે। આ વાતથી આપણે પોઝિશનલની હું તમને 15 મિનિટના ચાર્ટ બતાવું, જેથી કરીને આપણને આઈડિયા આવે કે આજે દિવસભર શરૂઆત કઈ રીતે થઈ અને ઓવરઓલ આપણને માર્કેટનો ટ્રેન્ડ કઈ રીતે જોવા મળ્યો। તો હું તમને 15 મિનિટના ચાર્ટ બતાવીશ કે 15 મિનિટમાં આપણે જોઈએ તો આપણે શરૂઆત ઓલમોસ્ટ આપણે ફ્લેટ થયા હતા। હવે 15 મિનિટમાં આપણે જો નજર કરાવું તો અહીંયા આપણે ઓપનિંગ જોવા મળ્યું હતું ઓલમોસ્ટ, કે જે આપણે ફ્લેટ આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે, જે બાદ તરત જ આપણને એક મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે બાદ આપણને ફરીથી એક મામૂલી રિકવરી જોવા મળી, ફરીથી એક કન્સોલિડેશન જોવા મળ્યું। આ સ્થિતિ આપણને ગઈકાલે પણ આપણને જોવા મળી હતી। ગઈકાલે આપણે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ આપણે અહીંયા ફ્લેટ ઓપનિંગ થયા હતા, જે બાદ આપણને મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો। ઘટાડા બાદ હું તમને નજર કરાવું તો આપણને અહીંયા મામૂલી રિકવરી જોવા મળી, તે બાદ ફરીથી આપણને કારોબારમાં કન્સોલિડેશન જોવા મળ્યું હતું। સેમ વસ્તુ આજે આપણને થઈ છે કે ઘટાડો થયો, થોડી રિકવરી થઈ અને જે બાદ આપણને અહીંયા કન્સોલિડેશન જોવા મળ્યું। કારણ કે એનું કારણ એ છે કે જો 24,500
એક લેવલ એવું છે કે જ્યાં આપણને ઘણા હેવી કોલ રાઇટર છે, એટલે કે 24,400 ઉપર આપણે જઈએ પણ છે તો ફરીથી આપણે નીચે આવી જઈએ છીએ. અને નીચેની તરફ 24,200 એક લેવલ છે કે જ્યાં આપણને એક હર્ડલ આવી શકે છે, એટલે કે જો 24,200 આપણે જઈએ તો ત્યાંથી આપણને સપોર્ટ લેતા જોવા મળે છે, જે ગઈકાલે આપણે એક વખત લીધું, સેકન્ડ ટાઈમ આપણે સેકન્ડ સેશનમાં લીધું, જે બાદ આજે આપણે ઓપનિંગ થઈને નીચે આવ્યા તો ઓલમોસ્ટ આપણને નજીક અહીંયા સપોર્ટ મળ્યો, જે બાદ ફરીથી આપણે અહીંયા ઉપર ગયા. એટલે ઓવરઓલ આપણે અહીંયા કહી શકાય કે 24,200 થી 24,500 આ એક રેન્જ એવી છે કે જેની વચ્ચે આપણને કન્સોલિડેશન જોવા મળી શકે છે. આ વસ્તુ તમને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટથી વધુ ક્લિયર કરાવવા માંગીશ. નિફ્ટીના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ હું તમને બતાવવા માંગીશ કે નિફ્ટીના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં જો તમને નજર કરાવું તો એમાં ખાસ કરીને 24,400 એક લેવલ છે કે જ્યાં આપણને કોલ રાઇટર્સ ઘણા હેવી આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. તો નિફ્ટી ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ હું તમારા સ્ક્રીન ઉપર લઈને આવીશ કે એમાં જે નિફ્ટી ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જો તમને નજર કરાવવા માંગીશ તો 24,400 કે જેમ તમને વાત કરી કે જ્યાં આપણને હેવી કોલ રાઇટર જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી વસ્તુ 24,300 કે એની ઉપર પણ આપણને હેવી કોલ રાઇટર્સ જોવા મળી રહ્યા છે. અને સ્વાભાવિક છે કે આજે નિફ્ટીની એક્સપાયરી છે, એટલે કે જે 24,300 ને પાર આપણે કન્ટિન્યુ આપણે સસ્ટેન કરીએ તો આપણને આગળ ફર્ધર તેજી જોવા મળી શકે છે. હવે આ સ્વાભાવિક છે કે આપણે આ એક્સપાયરીના આપણને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્સપાયરીમાં એન્ટર થઈશું તે એના આપણને જે અપડેટ ડેટા છે આપણને આવતીકાલે સવારે જોવા મળશે. પરંતુ આજનો દિવસ કઈ રીતે ક્લોઝિંગ થઈ શકે એની હું તમને વાત કરું તો એક 24,300 છે, જે તૂટે તો એની નીચે આપણને વાત કરું તો 24,200 છે, જ્યાં પુટ રાઇટર્સ છે કે જ્યાં આપણને એક સપોર્ટ મળી શકે છે, એટલે કે 24,200 સપોર્ટ તરીકે કામ કરી શકે છે. અને ઉપરની તરફ 24,400 છે કે જ્યાં આપણને એક કોલ રાઇટર્સ છે કે જ્યાં આપણને એક રેઝિસ્ટન્સ નડી શકે છે. એટલે આજે સ્વાભાવિક છે કે આપણને ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે કે 24,200 થી 24,400 આ બે રેન્જ છે કે જેની વચ્ચે આપણને કારોબાર બંધ થતો જોવા મળી શકે છે. આ વાતથી આપણે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની જે બાજુ તમને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ બતાવવા માંગીશ કે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જમાં તમને નજર કરાવીશ તો કઈ જગ્યાએ આપણને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વધારે બિલ્ડઅપ થયું છે. તેમાં સૌ પ્રથમ હું તમને ધ્યાન કરાવવા માંગીશ તો 24,300 કે જેમાં આપણને નવું બિલ્ડઅપ થયું છે કે 24,300 ઉપર નજર કરાવો તો ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈએ તો 2 કરોડ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ આપણને ઊભા છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે જે 24,300 ઉપર આટલી મોટી હેવી પોઝિશન આપણે ઊભી છે તો 24,300ની આજુબાજુ આપણને કારોબારમાં ક્લોઝિંગ થવું જોઈએ. અને જો એની નીચે સરકીએ તો આપણને ચાન્સીસ વધારે રહેશે કે નીચેની તરફ આપણે જઈ શકીએ છીએ. પરંતુ જેમ આપણે જોયું નીચલા સ્તરથી કન્ટિન્યુ આપણને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે એનું કારણ એ છે કે 24,250 અને 24,200 આ બે ઉપર પુટ રાઇટર્સ છે, જેના કારણે આપણને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને માર્કેટમાં આપણને રિકવરી જોવા મળી છે. આ વાતથી આપણે નિફ્ટીની જે બાજુ તમને બેંક નિફ્ટી બતાવવા માંગીશ કે બેંક નિફ્ટીમાં આજે કઈ રીતનો આપણને કારોબાર જોવા મળ્યો. ગઈકાલે એક્સપાયરી હતી પરંતુ આજે બેંક નિફ્ટીમાં આપણને થોડોક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કારોબાર જોવા મળ્યો છે. જેમ મેં સવારે વાત કરી હતી તમને કે આપણે 52,200 એક લેવલ છે, જો એ તૂટે તો એની નીચે આપણને ફર્ધર વધારે મંદી જોવા મળી શકે છે, જો ઓલમોસ્ટ 51,800 અને સેમ એવું જ આજે આપણને કારોબારમાં જોવા મળ્યું છે કે આપણે ઓલમોસ્ટ જોઈએ તો ઓપનિંગ આપણે ફ્લેટ જોવા મળ્યું છે, જે બાદ આપણને તરત જ આપણને કારોબારમાં એક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો ઓલમોસ્ટ હું વાત કરું તો 51,800ની આજુબાજુ આપણને એની નીચે આપણને થોડોક લો બનતો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ 51,800 એક લેવલ હતું કે જ્યાંથી આપણને સારું એવું સપોર્ટ જોવા મળ્યું છે. અને જ્યાંથી આપણે ઓલમોસ્ટ વાત કરું તો 52,200 એની ઉપર આપણે કારોબાર કરી રહ્યા છે અત્યારે હાલ, કે જો ઓલમોસ્ટ વાત કરું તો 52,300 છે કે જ્યાં આપણે અત્યારે કારોબાર કરી રહ્યા છે. અને એક સારી એવી બાબત છે કારણ કે 52,200 છે કે જ્યાં આપણે એક સપોર્ટ તરીકે કામ કરી શકે. અને ઓવરઓલ 52,200 જે લેવલ છે કે જ્યાં આપણને એક 10 ડે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ આવે છે, એટલે કે 10 દિવસની જે મૂવિંગ એવરેજ છે એ સપોર્ટ તરીકે આપણને એ કામ કરતું જોવા મળી શકે છે. અને ઉપરની તરફ શું, ઉપરની તરફ 52,500 છે કે જ્યાં આપણને એક હર્ડલ આવી શકે અને એના બાદ આપણને 53,000નું લેવલ છે જ્યાં હર્ડલ આવી શકે છે. એનું કારણ એ પણ છે કે જે PSU બેંક અને પ્રાઇવેટ બેંક બંને તરફથી આપણને સપોર્ટ નથી મળી રહ્યો. જે બંને તરફથી આપણને સપોર્ટ મળી રહે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે ઇઝીલી 53,000ને પાર કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એઝ ઓફ નાઉ આપણને સપોર્ટ નથી મળતો તો આપણે 52,500 અને નીચેની સાઈડ 51,800 આ બે રેન્જ છે પોઝિશનલી કે એની વચ્ચે આપણને કારોબાર જોવા મળી શકે છે. આ વાતથી આપણે ડેલી ચાર્ટની જે બાદ હું તમને 15 મિનિટની ચાર્ટ હું તમને બતાવવા માંગીશ કે 15 મિનિટમાં આપણને કઈ રીતનું આજે કારોબાર રહેવા મળ્યું છે. 15 મિનિટમાં હું તમને નજર કરાવીશ તો આપણે અહીંયા ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ ઓપનિંગ થયા, ફ્લેટ ઓપનિંગ તો આપણે થયા, જે બાદ અહીંયા પણ આપણને મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો, પરંતુ અહીંયા આપણને સારી એવી રિકવરી જોવા મળી. પરંતુ આજે લાસ્ટ જે વાત કરું તો 2 થી 2:30 વાગ્યાની જે કેન્ડલ ક્રિએટ થઈ છે, 2 કેન્ડલ કે એમાં આપણને સારી એવી શાર્પ મૂવ આપણને જોવા મળી છે. એનું કારણ એ પણ છે કે જે પ્રાઇવેટ બેંકમાં શરૂઆતી કારોબારમાં જે ઘટાડો હતો એમાં થોડી રિકવરી જોવા મળી છે. એના કારણે બેંક નિફ્ટીને સારો એવો સપોર્ટ મળ્યો છે કે જે ઓલમોસ્ટ હું વાત કરું તો 52,200ની ઉપર આપણને કારોબાર કરતા જોવા મળી છે. આ વાતથી આપણે 15 મિનિટની હું તમને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બતાવવા માંગીશ કે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં કઈ રીતના બદલાવ થયા છે. તો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની જો વાત કરું તો મેં સૌ પહેલાં તમને વાત કરવા માંગીશ તો 52,200 કે જ્યાં આપણને આજે એક મોટું હર્ડલ જોવા મળ્યું છે કે જ્યાં ઓલમોસ્ટ વાત કરું
તો 52 લાખના આપણને કોલ રાઇટર્સ અને 10 લાખના આપણને પુટ રાઇટર્સ જોવા મળે છે. એટલે કે ઓવરઓલ ત્યાં આપણને મિક્સ કારોબાર જોવા મળી શકે છે એક પોઝિશન ઉપર. પરંતુ નીચેની તરફ આપણે જઈએ તો એક હું તમને 52,000 એક લેવલ છે જ્યાં આજે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વધારે બિલ્ડઅપ થયા છે. જો ઓલમોસ્ટ વાત કરું તો 24 લાખ આપણને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડઅપ થતા જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા એક સપોર્ટ મળી શકે છે જેના કારણે આપણે રિકવરી થઈ નીચેના લેવલથી, પરંતુ આપણે ઉપર સસ્ટેન કર્યું. એનું કારણ એક આ જ છે કે જ્યાંથી આપણને સારો એવો સપોર્ટ મળે છે. હવે ઉપરની તરફ આપણે ક્યાં જઈ શકીએ? માની લો કે આપણે અત્યારે 52,300 આપણે કારોબાર કરી રહ્યા છે. હવે 52,300ની ઉપર આપણે સસ્ટેન કરીએ તો જેમ મેં વાત કરી 52,500 કે જ્યાં એક આપણને કોલ રાઇટર્સ જોવા મળે છે કે જ્યાં આપણને એક હર્ડલ આવી શકે છે એને પાર કરવામાં. હવે જો 52,500ને પાર કરીએ અને ઉપર આપણે સસ્ટેન કરીએ 15 થી 20 મિનિટ તો આપણને ફર્ધર 53,000 સુધીના આપણને લેવલ જોવા મળી શકે છે જે આપણા હેવી કોલ રાઇટર છે આફ્ટર 52,500. જે બાદ આપણે વચ્ચે જોઈએ તો 52,600, 700, 800 કે જ્યાં આપણને કોઈ એવો હર્ડલ જોવા નથી મળતું. એટલે કે 52,200ની આપણે ઉપર સસ્ટેન કરીએ તો 52,500 રહેશે એક હર્ડલ. એની બાદ આપણે 53,000નું એક છે કે જ્યાં આપણને હર્ડલ જોવા મળી શકે છે. અને નીચેની સાઈડ આપણે 52,000 છે જે એક સપોર્ટ આપી શકે છે. આ વાતથી આપણે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટથી. હવે હું તમને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ બતાવવા માંગીશ કે આજે જે ચેન્જીસ થયા એમાં આપણે કઈ રીતનું જોવા મળ્યું છે. કે જેમ મેં વાત કરી કે 52,000 કે જ્યાં આપણને સપોર્ટ મળ્યો છે કે ત્યાં આપણને સૌથી વધારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડઅપ થયા છે. કે જે ઓલમોસ્ટ વાત કરું તો 14 લાખ નવા એડ થયા છે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ. એના કારણે આજે આપણને મજબૂતી જોવા મળી અને રિકવરી જોવા મળી છે. અને સવારે પણ આપણે ગેસ્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યું હતું એમાં આપણને જાણવા મળ્યું હતું કે આજે એક છે કે નીચેના સ્તરથી આપણને સપોર્ટ લેતા જોવા મળી શકે છે. અને આજે આપણને એવું જોવા મળ્યું છે કે જે પ્રાઇવેટ બેંક તરફથી જે આપણને સપોર્ટ નહોતો મળતો, જે મામૂલી આપણને નીચલા સ્તરથી રિકવરી જોવા મળી છે, જેના કારણે અત્યારે આપણે ગ્રીનમાં કારોબાર કરી રહ્યા છે. આ વાતથી આપણે પુટ રાઇટર્સની. હવે કોલ રાઇટર્સ કેટલા એડ થયા છે તો કોલ રાઇટર્સની હું વાત કરવા માંગુ તો 52,200 ઉપર મામૂલી આપણને 9 લાખ જેવા આપણને કોલ રાઇટર્સ એડ થવા જોયા છે. એટલે કે 52,200 છે એની ઉપર સસ્ટેન કરીએ તો ફર્ધર આપણને તેજી જોવા મળી શકે છે. એટલે ઓવરઓલ આ વાતથી આપણે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીની ફરીથી હું તમને એક વખત કન્ક્લુઝન આપી દઉં કે આજે સ્વાભાવિક છે કે એક્સપાયરી છે નિફ્ટીની. એટલે નિફ્ટીમાં 24,300 ઉપર આપણે કારોબાર કરી રહ્યા છે. પરંતુ ઉપરના લેવલ આપણે 24,400 છે જે આપણને એક હર્ડલ આવી શકે છે. અને 24,500 ઉપર આપણને હાઈએસ્ટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જોવા મળે છે. એટલે કે ઉપરની તરફ 24,500 અને નીચેની તરફ 24,200 છે જે આપણને એક સપોર્ટ એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરી શકે છે. હવે બેંક નિફ્ટીની વાત કરું તો 52,200 જે લેવલ છે કે જ્યાં આપણને કોલ રાઇટર્સ અને પુટ રાઇટર્સ બંનેનું લેવલ વધારે જોવા મળે છે. એટલે કે જો એની નીચે સરકીએ તો 52,000 સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે અને ઉપરની તરફ 52,500 છે જે આપણને એક રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળી શકે છે. તો ઓવરઓલ આ વાતથી આપણે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીની. તો આ સાથે સમય થયો છે એક બ્રેકનો. બ્રેક બાદ આપણા ગેસ્ટ આપણી સાથે જોડાશે. એમની સાથે આપણે પોઝિશનલ વ્યૂ જાણીશું કે કઈ રીતે માર્કેટમાં આગળ વલણો જોવા મળી શકે છે અને બજેટ રિલેટેડ આપણે કયા કયા સ્ટોક છે જેની ઉપર ધ્યાન રાખવું દરેક પર આપણે ચર્ચા કરીશું એક બ્રેક બાદ. તો બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. જેમ તમને વાત કરી કે નિફ્ટીમાં 24,300 જે કન્ટિન્યુ આપણને પકડી રાખતા જોવા મળ્યું છે. અત્યારે 24,324 ઉપર કારોબાર કરી રહ્યું છે અને બેંક નિફ્ટી 52,300 ઉપર આપણને કારોબાર કરતું જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે કે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીમાં જે આપણે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ડેટા જોયા કે જ્યાં આપણને સૌથી વધુ હાઈએસ્ટ બિલ્ડઅપ જોવા મળ્યું છે એટલે ત્યાં જ આપણને કારોબાર બંધ થાય એવું આપણને જોવા મળી રહી છે. તો આ દરેક પર ચર્ચા કરીશું. આપણા ગેસ્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. લક્ષ્મીશ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફથી આપણે અંશુલ જૈન જોડાઈ ગયા છે. अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. ये लास्ट 2 दिन से हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग काउंटर हमें देखने को मिला है. खास करके हम जब देखें कि ओपनिंग तो हम फ्लैट होते हैं परंतु इसके बाद जिस तरह से हम रफ्तार पकड़ते हैं तो मान लो कि हमने शुरुआत में तो नफा वसूली देखने को मिलती है, उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिलती है. तो एक अच्छी बाबत है. और बैंक निफ्टी लास्ट 2 दिन से हम देखते हैं तो बहुत कमज़ोर देखने को मिली है. परंतु आज एक प्राइवेट बैंक है कि जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा खासा उसमें हमने देखा कि बेचवाली देखने को मिला, परंतु उसमें भी हमें सारी अच्छी खरीदारी वहाँ पे भी देखने को मिली है. तो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का सर चार्ट डिस्कस करना चाहूँगा कि अब स्वाभाविक है कि आज हमें निफ्टी की एक्सपायरी है तो अब पोजिशनली व्यू किस तरह से बन रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में सर? और देखिए निफ्टी में अगर देखें तो 20-डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे काफी अच्छा सपोर्ट बना रहा है और दोनों दिन हम वहीं से बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं. तो ये 20-डे मूविंग एवरेज कोइंसिडेंटली प्रीवियस मंथ हाई पे भी आ रहा है. तो ये जो रेंज बनी हुई है 24,140 से लेके 24,200 की ये मेजर सपोर्ट की रेंज है और इस रेंज को प्रोबेबली हम प्रोटेक्ट करते हुए दिखेंगे. ऑन द डाउन साइड 24,140 टूटता है तो ही मैं बेरिश होऊंगा. उसके बाद मुझे 23,900 और उसके नीचे के लेवल्स दिखेंगे.
लेकिन मेरा मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशन ये है कि हम बजट तक इस लेवल को प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे। ऊपर में अगर 24,400 निकल जाता है तो फिर फर्दर अपसाइड दिखेगी 24,500 24,600 तक की। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि नीचे में 24,170 के आसपास और ऊपर में 24,400 इस रेंज के अंदर हम काफी समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो एक कप हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। 52,240 के आसपास ब्रेकआउट आया है। 52,500 से 52,700 तक की अपसाइड मिल सकती है। तो क्लियर ट्रेड फिलहाल के लिए एक 300-400 पॉइंट की अपसाइड बैंक निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी में जो रेंज बनी हुई है उसके लोअर एंड पे है, तो यहाँ से अपर एंड तक हम जा सकते हैं। ओके, मैंने भी ये भी अंशुल जी यही बताया अपने दर्शकों को कि निफ्टी में जो 24,170 जो एक लेवल है कि जहाँ हमें लास्ट 2 दिन से हमें सपोर्ट मिला है, और 24,400 एक लेवल है कि जहाँ से कंटिन्यू हमें ऊपर से सेल ऑन राइस देखने को मिला है। तो स्वाभाविक है कि ये जो एक रेंज है उसके बीच में हमें कारोबार देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही हम फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी साइड हमें जाना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करें उससे पहले अंशुल जी मैं आपका पिक जानना चाहूँगा, कौन से फोकस में रहेंगे शेयर आपकी ओर से? अंशुल जी देखिए जी, लार्ज कैप में बहुत ज्यादा मूव दिख नहीं रहा है और इंडेक्स के बाहर सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इसे बाई दूंगा। पहला है एपीएल लिमिटेड। एपीएल लिमिटेड में अगर देखें तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है लगभग 80-90 दिन का। यहाँ पे ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। 1010 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही स्टॉक में बाई करना चाहिए। 970 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,000 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा काउंटर है नवकार कॉर्प। इसमें भी अगर हम 129 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 123 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 145 रुपए का इमीडिएट टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी नज़र में है। मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, मल्टीपल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी रिकमेंड किया है और आपके दर्शकों के लिए भी मैं यही स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। ओके, तो 2 સ્ટોક यहाँ पे અંશુલ જી की तरफ से, एक તો એપીએલ અપોલો છે કે જેમાં તમે 910 સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો અને એમાં તમને 1000 સુધીના ટાર્ગેટ જોવા મળી શકે છે। અને નવકાર કોર્પોરેશન છે કે જેમાં તમારે 123નો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો રહેશે અને ટાર્ગેટ તમને 145ના જોવા મળી શકે છે। और ये नवकार कॉर्पोरेशन तो मैं कई दिनों से मैं वॉच कर रहा हूँ अंशुल जी, कि हमने देखा हो तो लास्ट 6 महीने से उसकी जो रेंज 80 से लेकर 120 उसके बीच में काफ़ी उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और आपने जिस तरह से वो जो दिया है स्टॉप लॉस कि स्वाभाविक है जब 123 कि वहाँ पे बहुत सारा उसमें सपोर्ट भी हमने देखा है कि वहाँ से मिला है। तो आपने जिस तरह से बोला है नवकार कॉर्पोरेशन में कि 145, तो स्वाभाविक अगर 123 ब्रेक नहीं करता तो वहाँ पे 145 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक में आपसे चर्चा स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले नजर आ रहे तो IRCTC की मैं बात करना चाहूँगा कि IRCTC में हमने देखा था अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला। उसमें एक न्यूज़ था कि कंपनी ने DMRC एंड CRIS उनके साथ एक 1 इंडिया 1 टिकट की एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। DMRC मीन्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और CRIS इट मीन्स के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो ये दोनों के साथ मिलकर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनका जो मेन लाइन रेलवे है और दूसरा मेट्रो पैसेंजर, उन दोनों के जो भी ट्रैवल मुसाफिर है उनको जो एक्सपीरियंस अच्छा मिला, इंप्रूवमेंट मिला, उसकी वजह से उन्होंने एक टाइप किया है 1 इंडिया 1 टिकट करके उन्होंने इनिशिएटिव किया है। और उसमें खास करके उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो दिल्ली मेट्रो में जो भी ट्रैवल करेंगे उनको वेबसाइट या एप्लीकेशन से वो बुकिंग कर पाएंगे। यानी कि मुझे एडवांस में 120 डेज का बुकिंग करना होगा तो अभी मैं कर पाऊंगा, तो एक अच्छी बात है। तो आप इस न्यूज़ को किस तरह से देख रहे हैं और IRCTC के चार्ट को आप किस तरह से देख रहे हो अंशुल जी? देखिए IRCTC में काफी अच्छा पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इस स्टॉक में ये है कि इसमें ऊपर से सप्लाई बहुत आई थी जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और उस सप्लाई को अब कंटिन्यूसली ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं इसमें एक ब्रेकआउट चाहूंगा, उसके बाद ही मैं किसी तरह की बाइंग रेकमेंड करूंगा। ब्रेकआउट लेवल है 1045 1050 की जोन। अगर 1050 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो फिर मैं इमीडिएटली इस स्टॉक में बाई रेकमेंड करूंगा। ऊपर में 1100 1125 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तब तक के लिए अवॉइड की लिस्ट में रहेगा, वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, लेकिन बाइंग तभी करना चाहिए जब ये 1050 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे। और एक क्लैरिफिकेशन में देना चाहूंगा सर, नवकार कॉर्प में जो बाई कॉल दिया है वो करंट मार्केट प्राइस पे बाई नहीं कर रहा है, कंडीशनल बाई है। जब ब्रेकआउट देगा ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर उसी के बाद बाई करना है, करंट मार्केट प्राइस पे बाई नहीं करना है। इसमें जब ब्रेकआउट बन जाएगा 129 रुपए के ऊपर तभी बाई करना है, ये कंडीशनल बाई है।
तो ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रहा था। ओके, तो नौकर कॉर्पोरेशन पे आप 129 के ऊपर जाए तभी आपको खरीदारी करनी है। और बात रही IRCTC के, तो उसमें अभी आपको वेट एंड वॉच करना है और उसमें भी एक लेवल आए, उसके पार जाए तभी आपको नई खरीदारी करनी है। दूसरा HPL इलेक्ट्रिक में आपसे बात करना चाहूँगा, उसमें 20% का अपर सर्किट लगा है अंशुल जी। तो उसमें कुछ एक समाचार था कि उनको एक 52 वीक, एक तो मैं बात करूँगा उनका जो 52 वीक हाई भी आज लगा है कि उन्होंने उनका जो कंपनी का जो लीडिंग ग्राहक है कस्टमर, उनकी ओर से उनको 2000 रुपीज़ का एक स्मार्ट मीटर के लिए ऑर्डर मिला है। अगर मैं वो शेयर की स्पेसिफिक बात करूँ तो 52 वीक लो कंपनी का 168 है और अभी उनका हाई 555 है, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो 260 से 280% हमें तेजी एक साल में ही देखने को मिली है। तो आप HPL इलेक्ट्रिक किस तरह से देख रहे हो अंशुल जी? देखिए, इसमें एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे। 5 टाइट क्लोजेस थे जिससे आज के सेशन में ब्रेकआउट आया और ये स्टॉक अपर सर्किट मार गया है। यहाँ से बहुत आराम से स्टॉक में 640-650 तक की अपमूव बन सकती है। अब लेकिन यहाँ से फ्रेश बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 20% चला है, तो फिर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए। 650 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग यहाँ से सजेस्टेड नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। ओके, तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच आपको करने की यहाँ से राय बन रही है। एक पेंट कंपनी की आज मैं स्पेसिफिक डिस्कस करना चाहूँगा। एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, कि उन्होंने अपनी पेंट की जो प्राइस में यहाँ से हाइक किया है कि ऑलमोस्ट 1% तक का उन्होंने यहाँ से हाइक किया है। और ये जो प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ किया है उसकी वजह से जो स्पेसिफिक नुआमा है, जो ग्लोबल ब्रोकरेज, उन्होंने एक बाय का रेटिंग दिया है एशियन पेंट पे। उन्होंने जो बाय का रेटिंग दिया उसके साथ उन्होंने टारगेट 3450 का दिया है। और उनका कहना यह भी है कि ये जो करंट क्वार्टर है उसमें अभी थोड़ा म्यूट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, परंतु अब जो आने वाले क्वार्टर है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट जो हाउसिंग फॉर ऑल वो जो एक कंसेप्ट लेके आई है, तो स्वाभाविक है कि नए घर बनेंगे तो नए घर को जो दीवार को पेंट चाहिए तो पेंट का ज़्यादा यहाँ से सेलिंग होगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ से एक बाय का रेटिंग दिया है। तो आप किस तरह से देख रहे हो एशियन पेंट एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का, आप किस तरह से देख रहे हो अंशुल जी? देखिए सर, पहले कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ। HDFC बैंक आप ही के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स मैंने रिकमेंड किया था कि बॉक्स के लो पे है। पहली चीज, ये म्यूचुअल फंड वाला या PMS स्टॉक है, बॉक्स के लो पे है, लो रिस्क है। 1420-1440 में बाई कीजिए। बॉक्स का हाई 1700 आएगा, बॉक्स का हाई क्रॉस होगा तो 2000 तक जाएगा। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर एशियन पेंट्स में है। ये भी PMS स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, म्यूचुअल फंड का स्टॉक है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स का स्टॉक है। और इसमें एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, ऑलमोस्ट 42-43 महीने 43 मंथ्स हो चुके हैं और ये बॉक्स के लोअर एंड पे है, जैसा पिछले 1.5 महीने पहले HDFC बैंक था। यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चलना चाहिए। पहले ये बॉक्स हाई दिखाएगा आपको 3500-3540 का, उसके बाद जब स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा तो 4000 रुपए तक की अपसाइड आती हुई दिखेगी। मैं कहूंगा एशियन पेंट्स आप ना सिर्फ इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाई कीजिए, बल्कि ये पोर्टफोलियो PMS स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अगर बाई करके छोड़ते हैं तो बहुत आराम से यहाँ से 4000 तक का टारगेट मिल सकता है, विच इज मोर देन 30% अपसाइड फ्रॉम करंट ऑर्डर लेवल्स। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बाई करके रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में अगर बाई करते हैं तो 3500 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ओके, तो ये ओवरऑल व्यू रहा है एशियन पेंट्स के लिए। अब नोमुरा ने दूसरी एक कंपनी के उसमें भी बाय का रेटिंग दिया है, अंबुजा सीमेंट। उन्होंने डबल अपग्रेड दिया है और उन्होंने बाय का रेटिंग के साथ 780 का उन्होंने यहाँ से टारगेट दिया है। और नोमुरा का कहना ऐसा है कि कंपनी की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्री में उसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो मार्केट कवर है उसमें भी अच्छी खासी यहाँ बढ़ोतरी हुई है। और उनका कहना है कि जो पेना सीमेंट का जो एक्विजिशन की जो बात है उससे कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 तक 14% CAGR से ग्रोथ करेगी, ऐसा उनका मानना है। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे बाय का रेटिंग दिया है और शेयर में आज उसका इफेक्ट भी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2 से 3% तक की यहाँ पे अपसाइड भी देखने को मिली है। तो आप किस तरह से देख रहे हो सर? देखिए, अंबुजा सीमेंट में स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ऊपर में स्टॉक 750 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया था, धीरे धीरे अपना 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर पकड़ के चल रहा है। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। 740-750 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखूं तो मुझे लार्ज कैप में ACC ज्यादा बेटर प्ले लगता है। अगर आप चाहें तो अंबुजा सीमेंट खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर स्ट्रक्चर
या चार्ट पैटर्न जो है वो ज्यादा बेहतरीन एसीसी में बन रहा है। 18 महीने का बेस बना है कप एंड हैंडल का। यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक में फ्रेश अप मूव बन सकता है। स्टॉक में 3200 तक की अप मूव बन सकती है। और स्मॉल कैप में अगर खरीदना है तो दिग्विजय सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट खरीद सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट हमारे 4th पे आता है, लार्ज कैप में 2nd पे आता है और ओवरऑल सीमेंट पैक में 4th पिक पे आता है। टॉप पिक हमारी एनी डे एसीसी है और उसकी वजह से भी है कि उसका चार्ट स्ट्रक्चर अंबुजा से ज्यादा अच्छा है। फंडामेंटल्स दोनों के बराबर हैं, तो अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे ले रहे हैं आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। चार्ट के बेसिस पे देखना है तो टेक्निकली एसीसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके, तो यहाँ से आपके लिए दो राह है। अगर आप फंडामेंटली बाय करना चाहते हो तो आपके लिए अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी दोनों स्टॉक है जहाँ आप निवेश कर सकते हो। परंतु आप टेक्निकल देखना चाहो तो इसके लिए आपको एसीसी है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा मजबूती दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहूँगा कि आज शेयर में हमें ऑलमोस्ट 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है। और लास्ट कई दिनों से हम देखें तो उसमें ऐसा अच्छा खासा बजिंग भी देखने को मिला है। और उसमें न्यूज़ ऐसा है कि जो इंडियन रेलवे है उनकी तरफ से उन्हें 19 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। और शेयर की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो सिर्फ एक साल में कंपनी ने 560% रिटर्न दिया है। तो अभी भी लगता है आपको चार्ट देख के कि यहाँ भी और अभी अपसाइड देखने को मिल सकती है या फिर अब नफा वसूली यहाँ से देखने को मिल सकती है? आप किस तरह से देखते हो सर? आप ओरिएंट रेल की बात कर रहे हैं, ये शायद से बीएससी में है काउंटर। यस, हाँ ओरिएंट जी, रेल ये इंफ्रास्ट्रक्चर। जी जी जी, मिल गया मेरे को, चार्ट पे मिल गया। ये इसमें देखिए सर एक पूरा बेस बना हुआ था। इसमें 122 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 300 रुपए पे। और 122 दिन का बेस जब ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में जनरली 30 to 40% की अपसाइड आती है। छोटा फ्री फ्लोट है, 250 करोड़ का फ्री फ्लोट है, 2040 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्च का क्वार्टर अगर छोड़ दें तो जून सितंबर और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। तो यहाँ से स्टॉक में आराम से 450 से 500 तक की अपसाइड बन सकती है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस 330 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे आएगा। तो मैं कहूंगा 2-3 दिन का इनसाइड बार या टाइट रेंज अगर बार्स बन जाती हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 2-3 दिन की कंसोलिडेशन की वेट कर लीजिए। अगर कंसोलिडेशन आ जाता है तो ब्रेकआउट पे छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग करने का मौका मिलेगा। फिलहाल 330 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा 1-2 दिन की कंसोलिडेशन की वेट कर दीजिए। ओके, तो कंसोलिडेशन अभी जब तक हो जाए तब तक आपको वेट करना है। दूसरा मैं आज टॉप गेनर देख रहा हूँ निफ्टी के, तो उसमें खास करके पीएसयू स्टॉक आज ध्यान में आ रहा है कि जिसमें खास करके बीपीसीएल 2% अप है, कोल इंडिया 2% अप है, ओएनजीसी भी 2.5% अप है। तो मोस्टली हम देखें तो जो टॉप 5 में से टॉप 3-4 स्टॉक है जो पीएससी स्टॉक है। लास्ट 3-4 दिन से हम देखें तो पीएससी स्टॉक और पीएससी वो दोनों में हमें थोड़ा सा नरमस देखने को मिला है। लेकिन आज है कि अच्छा खासा उसमें बजिंग देखने को मिला है। खास करके मैं आपसे ओएनजीसी की बात करना चाहूँगा। ओएनजीसी में हम देखें तो 300 पे लास्ट 3-4 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिला था, परंतु आज फिर से उसमें नए 52 हाई देखने को मिले ऑलमोस्ट 307 के पास। और कई सारे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है कि उन्होंने पास में लास्ट एक मंथ में 2 से 3 लोग ब्रोकरेज फार्म है कि जिन्होंने अपसाइड के टारगेट दिए ऑलमोस्ट 360 से 380 तक। तो आप सर किस तरह से देख रहे हो? आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा आने वाले 3 से 6 मंथ तक जो 350 या 360 तक ऐसा जा सकता है शेयर सर? देखिए ओएनजीसी में 57 डेज का एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। उसके बाद से 3 दिन से टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो मैं कहूँगा स्टॉक को फ्रेश बाई कर सकते हैं। 290 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेंगे तो 15 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी। सामने 345 का इमीडिएट टारगेट दिख रहा है और 345 निकलता है तो 390-395 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। बिल्कुल ब्रेकआउट पे आके ये फॉलो थ्रू मूव दे रहा है तो एकदम लोएस्ट रिस्क एंट्री मिल रही है। 290 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसको फ्रेश बाई करना चाहिए। ओके, तो 290 स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ से फ्रेश बाइंग की सलाह आपके लिए यहाँ से बनती हुई है। अब मैं भारतीय मार्केट बंद हो गया तो सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूँ तो સૌ પ્રથમ હું તમને નજર કરાવવા માંગીશ કે નિફ્ટી કે જે મજબૂતી સાથે આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે કે ઓપનિંગ આજે આપણને ફ્લેટ જોવા મળ્યું, જે બાદ આપણને ભારે નફા વસૂલી જોવા મળી, પરંતુ ગઈકાલની જેમ આજે પણ આપણને નીચલા સ્તરથી સારી એવી રિકવરી જોવા મળી છે। સાથે સાથે બેંક નિફ્ટીની વાત કરું તો બેંક નિફ્ટીમાં જે 52,200 લેવલ હતું જે આપણને ઘણું હર્ડલ જોવા મળ્યું હતું, જે આપણે બ્રેક કર્યું 52,000ની નીચે પણ એક સમય આપણે ગયા અને ઓલમોસ્ટ આપણે 51,800ની આજુબાજુ આપણે લો બનતા જોવા મળ્યા, પરંતુ આપણે ત્યાંથી સારી એવી રિકવરી જોવા મળી, જે બાદ 52,300 ઉપર આપણે ક્લોઝ થયા છે, જે એક આમાં પણ સારી એવી બાબત કહી શકાય। સાથે સાથે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ તમને હું જાણ કરવા માંગીશ કે આપણને ઘણા દિવસોથી 5થી 0.5% મજબૂતી સાથે આપણને ક્લોઝિંગ થતા જોવા મળે છે। એટલે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં સારી એવી ખરીદારી
જોવા મળી છે. એનું કારણ એક એ પણ છે કે જે 23 જુલાઈએ બજેટ આવી રહ્યું છે કે એના કારણે લોકો અત્યારે સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપ જે અમુક સેક્ટર વાઇઝ ઘણી પસંદગી તેઓ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે સેક્ટરની તમને અપડેટ આપી દો કે કયા સેક્ટરમાં આજે આપણને ખરીદારી જોવા મળી છે. તો જેમાં ખાસ કરીને એક PSU બેંક છે કે જેમાં આપણને ઓલમોસ્ટ 5% મજબૂતી જોવા મળી. સાથે સાથે આપણે વાત કરું તો નિફ્ટી મીડિયા, નિફ્ટી એનર્જી, પ્રાઇવેટ બેંક, નિફ્ટી PSE એટલે કે સરકારી સ્ટોકમાં આજે આપણે જોઈએ તો સરકારી શેરોમાં ઘણી સારી એવી આપણને ખરીદારી જોવા મળી છે. BPCL હોય કે ONGC હોય કે ઘણા એવા સ્ટોક છે કે જેમાં આપણને સારી એવી ખરીદારી જોવા મળી રહી છે. હવે કમજોરી ક્યાં હતી? તો કમજોરી એક તો હેલ્થકેર સેક્ટર, સાથે સાથે હું વાત કરું તો એક નિફ્ટી રિયાલિટી સતત બીજા ત્રીજા દિવસે એવું છે કે આપણને અહીંયાથી રેડમાં કારોબાર બંધ થતો જોવા મળ્યો છે કે સ્વાભાવિક છે કે ઘણા દિવસથી આપણને સારી એવી તેજી જોવા મળી છે તો એમાં પણ આપણને એક થોડું કન્સોલિડેશન અને નફા વસૂલી જરૂરી છે. જેથી કરીને ઇન્વેસ્ટરોને એક કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ થાય અને તેઓને નવી ખરીદી કરવી હોય તો અહીંયાથી એ કરી શકે છે. સાથે સાથે હું બીજું એક તમને અપડેટ આપવા માંગીશ કે ઇન્ડિયા વિક્સની એક અપડેટ આપવા માંગીશ કે આજે આપણને થોડોક ઘટાડો જોવા મળે છે. કારણ કે આપણે જોઈએ તો લાસ્ટ 3 દિવસથી કન્ટિન્યુ આપણને વધારો જોવા મળ્યો હતો અને સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા પણ હજી આજે આપણને ઘટાડો જોવા મળ્યો છે પરંતુ આવનારા દિવસમાં આપણને અહીંયા વધારો જોવા મળી શકે છે. એનું કારણ એ છે કે આપણે એક મેઇન ઇવેન્ટ આવી રહી છે બજેટની. જેમ જેમ કોઈ પણ મેઇન ઇવેન્ટ આપણે માર્કેટમાં આવે ત્યારે ઇન્ડિયા વીક છે કે જેમાં આપણને વધારો થતો જોવા મળે અને જેના કારણે આપણને માર્કેટમાં વોલેટિલિટી પણ વધતી જતી જોવા મળે છે. તો ઓવરઓલ આ વ્યૂ થયો આપણે ભારતીય શેર બજારનો. હવે અંશુલ સર, હું તમારી સાથે એક સ્પેસિફિક શિપિંગ કોર્પોરેશન ઇન્ડિયા અને સાથે સાથે NMDC સ્ટીલ લિમિટેડ આ બેની વાત કરવા માંગીશ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક એસેટ મેનેજમેન્ટ છે એમના તરફથી શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને નર્મદા સ્ટીલ લિમિટેડ આ બંનેને એક પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવા માટેની એક વિચારણા ચાલી રહી છે. અને આ જે ન્યૂઝ હતા એના કારણે આપણને શિપિંગ કોર્પોરેશન ઇન્ડિયામાં 20% સર્કિટ સાથે નવા 52 હાઈ જોવા મળ્યા અને NMDC સ્ટીલ લિમિટેડમાં પણ આપણને 7% તેજી જોવા મળી છે. અને જો વાત કરીએ આપણે जनरली तो जो प्राइवेटाइजेशन ये जो भी होने वाला है प्राइवेटाइजेशन वो थोड़ा डिफिकल्ट है गवर्नमेंट के लिए क्योंकि ये जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा ये इजीली मूव जो उसका जो डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकती बिकॉज एक तो पॉलिटिकल चैलेंजेस उनके लिए रहेगा. दूसरा वर्कर यूनियन है क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 5,887 वर्कर्स काम कर रहे हैं नर्मदा स्टील लिमिटेड में तो वहाँ उनका वर्कर यूनियन भी ज़्यादा है तो वो इजीली यहाँ से प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे. तो ये जो न्यूज़ है उसके हिसाब से सर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NMDC स्टील लिमिटेड ये दोनों स्टॉक को आप किस तरह से देख रहे हो सर? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन में मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा. शिपिंग कॉर्पोरेशन हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था 268 रुपीज में. हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए 4 तारीख को, 4 जुलाई को. और आज के सेशन में 10% बढ़ के हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ था. सुबह हमने प्रॉफिट बुकिंग दी थी, उसके बाद स्टॉक अपर सर्किट लग गया है. अभी भी हमको स्टॉक में तेजी लग रही है. नेक्स्ट जब 2-3 इनसाइड बार बनेंगे या टाइट रेंज कंसोलिडेशन बनेगा तो हम वापस से अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे क्योंकि ये स्टॉक हमको 450 रुपये जाता हुआ दिख रहा है. 400 से 450 के बीच के टारगेट्स हमको दिख रहे हैं. इसमें 106 दिन का बेस ब्रेकआउट है और 106 दिन का बेस ब्रेकआउट बड़ा ब्रेकआउट होता है. 30-40% स्टॉक आराम से चलता है. 20% चल गया है, 20 से 30% और अपसाइड दिख रही है. तो बिल्कुल अगर डिप्स मिलती हैं तो बाय करना चाहिए या 2-3 दिन का इनसाइड बार या टाइट रेंज कंसोलिडेशन मिलता है तो उसके ब्रेकआउट पे फिर बाय करना चाहिए. 450 जाता हुआ दिख रहा है. दूसरा NMDC की आपने बात की. NMDC मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. इसमें इमीडिएट स्विंग स्ट्रक्चर पे सपोर्ट था 248 का, उसके नीचे आके क्लोज किए हैं. 20 और 50 डे मूविंग एवरेज थोड़े से डाउन ट्रेंडिंग हो रहे हैं और पिछले 8-10 दिन से उनको रेजिस्टेंस भी दे रहा है. तो यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे. नीचे में 200 रुपए तक डाउन साइड आ सकती है. फिलहाल 246 के आसपास चल रहा है तो 20% यहाँ से डाउन साइड आती हुई दिख सकती है NMDC में. तो NMDC क्लियरली एग्जिट की सलाह रहेगी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो. और SCI में किसी तरह का कंसोलिडेशन आता है तो फ्रेश ब्रेकआउट पे बाइंग की सलाह रहेगी. ओके, तो SCI में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. लेकिन सर मैं आपको NMDC स्टील लिमिटेड की बात कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट अभी 61 रुपीज़ चल रहा है. ये जो स्पेसिफिक न्यूज़ है वो SCI एंड NSL के लिए. जो NMDC स्टील लिमिटेड उसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा. NMDC स्टील लिमिटेड काफी अच्छा लग रहा है सर. इसमें 4 हफ्ते की टाइट कंसोलिडेशन और इनसाइड बार पैटर्न रहा है. जो जून फर्स्ट वीक में जो कैंडल बनी थी उसके अंदर ही पूरा ट्रेड हुआ है. 2 हफ्ते के लो के नीचे फेड लो की फॉर्मेशन दिया है तो यहाँ से हाई लाइकली है कि 68 रुपीज तक ये अपसाइड आ सकता है और 68 तोड़ता है तो फिर ये नई ट्रेजेक्टरी में निकल जाएगा. तो फिलहाल के लिए बाई कर सकते हैं 68 रुपीज का टारगेट लेते हुए. 68 पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह एक बार वापस से किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करा लीजिए क्या ये स्लाइस थ्रू कर रहा है. अगर कर रहा है तो फिर होल्ड करना चाहिए, बड़े टारगेट्स आएंगे. ओके,
और सर एससीआई का दूसरा भी एक न्यूज़ था कि एससीआई का जो स्पेसिफिक ऑयल कॉरपोरेशन के साथ वो कुछ जॉइंट वेंचर करने का वो प्लान कर रहे हैं कि वो जो जॉइंट वेंचर जो करेंगे उनसे जो लार्ज ऑयल टैंकर का प्रोडक्शन आता है उन पे वो स्पेसिफिक काम करते हुए देखेंगे और उसकी वजह से जो फॉरेन फार्म पे जो अभी डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो जाएगी। तो ये जो स्टॉक है जो न्यूज़ उसकी वजह से लगता है कि जो ऑयल कॉरपोरेशन पे भी हमें कुछ असर दिखने को मिल सकता है सर। और देखिए ऑयल इंडिया में अगर आप देखें तो ऑयल इंडिया में लगभग जितनी ऑयल कंपनी के चार्ट्स हैं सब में लगभग एक तेजी डेवलप हो रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है बेस का ब्रेकआउट आया है लेकिन ये वेजिंग काइंड ऑफ अप मूव में जा रहा है जो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। आज के सेशन में थोड़ा वर्टिकल मूव है, चार्ट स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है लेकिन उतना आइडियल पैटर्न नहीं है जितना आइडियल पैटर्न मुझे चाहिए होता है कि मैं बाय रिकमेंड कर सकूं। तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। न्यूज बेस्ड मूव है, फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो मैं इसको अवॉइड सजेस्ट करूंगा। मेरे लिए बहुत क्लियर पैटर्न नहीं है इसमें कि मैं बाई या सेल रिकमेंड कर सकूं। ओके, तो ऑयल इंडिया एज ऑफ नाउ आपको अवॉइड की सलाह यहाँ से बनती हुई दिख रही है। आपसे अंशुल जी मैं एक स्पेसिफिक बजट स्पेशल आपको बात करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि अब तक बजट में से एग्रीकल्चर थीम को स्पेसिफिक बहुत सारे ऐसे सपोर्ट देखने को मिले कि पास्ट बजट में भी हम देखें तो कई सारे ऐसे स्टेप है जो बजट में हमने लेते हुए देखे हैं। तो लग रहा है कि अब जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को कि उसमें स्पेसिफिक एग्रीकल्चर थीम को यहाँ से बूस्ट करते हुए सरकार दिखे और वो जो स्पेसिफिक जो यहाँ से उनको बूस्ट करते हुए दिखे जैसे कौन से एजेंडा है कि जिस पे वो फोकस कर सकते हैं और उसके लिए जो स्पेसिफिक स्टॉक है उसमें से कोई आपको पसंद हो कि लाइक मैं बात करूँ तो एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, कावेरी सीड्स है, कैसे बहुत सारे स्टॉक है कि जो यहाँ से हमें बजिंग देखने को मिल सकता है। तो आपका व्यू किस तरह का है सर? देखिए मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। लगभग सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के चार्ट्स भी बहुत बेहतरीन है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद फ्रेश अपमूव देते हुए दिख रहे हैं। और बजट में आप देखिए दो चीजों पे काफी फोकस रहेगा। जो पहला स्पेसिफिकली आपने कहा कि फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, दूसरा फोकस गवर्नमेंट का रहेगा मिडिल क्लास पे। तो ये दो सेगमेंट है जो हमको तेज लग रहे हैं, लेकिन इन पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर स्टॉक्स हमें काफी तेज लग रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, एनएफएल हमने अपने क्लाइंट्स को 140 रुपए में बाय रिकमेंड किया था, 161 रुपए में उसका टारगेट कंप्लीट हुआ है। दूसरा आरसीएफ भी हमने अपने क्लाइंट्स को 200 रुपए में रिकमेंड किया है। वहां से स्टॉक में हाई जो बना है वो 243 के आसपास का बना है। तो ये दोनों स्टॉक्स हमको काफी तेज लग रहे हैं, दोनों स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मद्रास फर्टिलाइजर एक तीसरा स्टॉक है जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। अगर डेरिवेटिव स्पेस में ट्रेड करते हैं तो चंबल फर्टिलाइजर भी हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर हमारा सबसे पसंदीदा सेक्टर लग रहा है बजट के लिए। सेकंड बेस्ट जो हमको लग रहा है वो मिडिल क्लास के हिसाब से रियलिटी स्पेस में लग रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा देगा जो मिडिल क्लास को खुश करेगा। इसकी वजह से सनटेक रियलिटी में काफी तेजी डेवलप हुई है और आगे भी स्टॉक में काफी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, ये तीन हमारे फर्टिलाइजर में टॉपिक है। सनटेक रियलिटी हमारा रियलिटी मिडिल क्लास सेगमेंट जिसको केटर करेगी गवर्नमेंट, उसमें से हमको सनटेक रियलिटी काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये ओवरऑल व्यू रहा फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर थीम पे कि सभी स्टॉक है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। दूसरा एक एनर्जी सेक्टर आज हमने देखा तो बजिंग देखने को मिला है, लेकिन एनर्जी सेक्टर का तो मैं आउटलुक आपसे जानना चाहूँगा, पर साथ में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ईडा की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ बहुत अच्छा हमें आज बजिंग देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 15 से 16% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। अगर मैं उसका आईपीओ भी हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 महीने के पहले ही हमें उसका आईपीओ देखा है, ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास उसका इश्यू प्राइस था, लेकिन अभी उसका मैं प्राइस देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 283 का आज हमें उसका हाई क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट हम देखने जाए तो 500% रिटर्न हमें 6 महीने के आसपास हमें मिला है। तो सर ईडा आप किस तरह से देख रहे हो एंड साथ में एनर्जी सेक्टर आप किस तरह से देख रहे हो सर? देखिए सुबह से मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं ऑनलाइन हूँ और हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी वेबिनार करते हैं। आज सुबह से ईडा का डिस्कशन हो रहा है। देखिए इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। 97 डेज का पूरा बेस बना था जिसमें से 203 रुपीज पे ब्रेकआउट आया है। ऑलमोस्ट 300 रुपए स्टॉक आ चुका है। यहाँ से 400 450 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 350 का टारगेट मैंने मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिया है, लेकिन 350 मेरे हिसाब से पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। अल्टीमेटली ये स्टॉक 400 450 रुपए आता हुआ दिख रहा है। फ्रेश बाइंग के लिहाज से थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह के सेशन में जब हम बाय रिकमेंड कर रहे थे तब रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल था, लेकिन 15-16% चल गया तब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं रह गया है। तो मैं वापस 2-3 दिन की कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। अगर बनती है तो उसके ब्रेकआउट से वापस 4-5% की स्टॉप लॉस के साथ बाई बनेगा। ऊपर में 400 से 450 स्टॉक आता हुआ दिख रहा है।
ओके, और सर टाइम फ्रेम क्या रहेगा इसके लिए? देखिए जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है 1-1.5 महीने में ये टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए, क्योंकि मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है और बजट भी सामने खड़ा है। तो पीएसयू स्टॉक्स में वैसे भी तेजी बनी है, तो 1-1.5 महीने में ये अपना टारगेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन मैं कहूँगा बजट के 1-2 दिन पहले पीएसयू और रेलवे स्टॉक से आप एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी कुछ कम आता है तो इन स्टॉक्स में बहुत एंटिसिपेशन में बाइंग हुई है, उतनी तेजी से पिटाई भी होगी। तो एटलीस्ट 50% बुक करके कैश पे रहिए। अगर सब कुछ अच्छा रहता है और तेजी रहती है तो बाकी 50% पे प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ आता है तो एटलीस्ट 50% पे आप प्रॉफिट बुक कर चुके रहेंगे। ओके, तो आपको यहाँ से 1 से 1.5 महीने में 400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और अंशुल जी, आपने सही कहा कि जो प्रॉफिट बुकिंग वो कंपलसरी में होना ही चाहिए। और जिस तरह से खास करके जो ओवर वैल्यू हो गए स्टॉक की, जिसमें अच्छी खासी खरीदी देखने को मिली है, जिसका पी 50 से 70 या 80 तक पहुंच गए, उसमें तो हमें खास करके अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए। और उसकी जगह फिर हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक जो हो उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वन टाइप ऑफ ऐसा हम कह सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। साथ में मैं एक यस बैंक आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यस बैंक आज थोड़ा हमने देखा तो शुरुआती कारोबार में हमें ऑलमोस्ट 6 से 7% की तेजी देखने को मिली है। उसके 2 न्यूज़ है, एक तो मूडीज़ की तरफ से एक तो आउटलुक उन्होंने अपडेट किया है कि उन्होंने जो पहले जो स्टेबल का जो आउटलुक दिया था वो अपडेट करके उन्होंने पॉजिटिव आउटलुक किया है। और उनका कहना यह है कि पिछले 2 से 3 साल में कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, साथ में जो कैपिटलाइजेशन है उसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, और कंपनी का जो डिपॉजिट बेस है और लैंडिंग फ्रेंचाइजी उसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे जो स्टेबल रेटिंग था वो अपडेट करके उन्होंने आउटलुक पॉजिटिव किया है। तो सर आप किस तरह से देख रहे हो? और साथ में दूसरा एक ऐसा भी न्यूज़ चल रहा है कि उनका जो स्टेक सेल की जो बात चल रही है उसमें कुछ आबू धाबी करके जो है फंड जो आउटसाइड, उनका कुछ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है। ऐसे भी ऐसे मार्केट में बात चल रही थी, अभी ऐसा कुछ क्लियरिटी आया नहीं है, परंतु ये जो मूडीज़ का जो रेटिंग है उसकी हमें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रही है। तो आप सर किस तरह से देख रहे हो यस बैंक को? देखिए स्टॉक में 28 रुपए के ऊपर मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट होगा, पैटर्न काफी अच्छा बिल्ड हो रहा है, लेकिन अभी बिल्डिंग फेज में 28 रुपए के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट होगा। अगर आप प्रीएम्प्टिव बायर है, जिनको थोड़ा सा समय अगर लग जाता है और दिक्कत नहीं होती है तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम प्लेयर है तो 28 रुपए के ऊपर मोमेंटम बनेगा। इमीडिएट टारगेट 34 रुपए के आसपास का बनेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 45 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है। मैं 28 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव बायर है, थोड़ा सा समय मतलब पेशेंस रख सकते हैं, तो करंट मार्केट प्राइस से भी बाई करके चल सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो यहाँ से आपको बाय करने की सलाह यहाँ से बन रही है अंशुल जी की तरफ से। अब मैं आज पीएसयू स्टॉक की एक स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि आज बजिंग देखने को मिला है, पिछले हम देखें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन से पीएसयू स्टॉक में थोड़ी हमें मंदी देखने को मिल रही थी। साथ में पीएससी स्टॉक भी ले लो कि उसमें इतना खासा बजिंग देखने को नहीं मिल रहा था, परंतु आज हम कई सारे ऐसे सेक्टर है कि वहाँ पे जो बजट से लिंक होते हैं वहाँ पे अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिली है। उसी वजह से हमें यहाँ से सुबह से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो मैं आपसे पीएसयू जो स्टॉक है उनका एक आउटलुक देखना चाहूँगा, और साथ में पीएसयू जो स्टॉक है उसमें से कोई 1 या 2 आपको पसंद हो कि जो बजट के स्पेशली नहीं परंतु लॉन्ग टर्म पर्पज से आपको लग रहा हो कि यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ऐसे स्टॉक सर कौन से रहेगा आपके ओर से? देखिए पीएसयू सेक्टर अभी भी काफी अच्छा लग रहा है, और अगर ये गवर्नमेंट जैसी एक्सपेक्टेड है 5 साल पूरा चल जाती है तो पीएसयू सेक्टर में काफी अच्छी तेजी बनी रहेगी। और लार्ज कैप पीएसयू में मैं बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। अब एर्डा एक शेयर है IREDA जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें मेरे को मोमेंटम दिख रहा है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से शायद 700 साढ़े 700 रुपए तक जा सकता है, तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। IRFC में भी काफी अच्छा मूव डेवलप होता हुआ दिख रहा है, वहाँ भी 400 साढ़े 400 रुपए लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। तो ये 2 काउंटर हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा MMTC भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये 3 काउंटर्स हैं, बट IREDA और IRFC ये 2 हम अपने क्लाइंट्स को ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, तो IREDA एंड IRFC ये दोनों स्टॉक है कि जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा एक फार्मा कंपनी की मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा
ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसमें जो उनकी जो ग्लेनमार्क फार्मा है, उन्होंने कुछ यहाँ से OFS के द्वारा उन्होंने यहाँ से स्टेक सेल किया है, ऑलमोस्ट 7.8% का उन्होंने यहाँ से स्टेक सेल किया है, और उनका जो फ्लोर प्राइस है वो अराउंड 810 के आसपास रखा था, जो ऑलमोस्ट गई काल की हम देखें जो बंद कीमत, वहाँ से ऑलमोस्ट हमें 7.5% डिस्काउंट ऊपर ये फ्लोर प्राइस देखने को मिल रही है। और जो ये OFS है स्पेसिफिक आज से नॉन रिटेल के लिए शुरू हुआ है और कल से रिटेल के लिए शुरू होगा। पर ये जो न्यूज़ है कि जिस तरह से डिस्काउंट पे जो QIP हो रहा है, उसने मार्केट में एक अच्छा एक्शन नहीं देखने को मिला। ऑलमोस्ट हमें देखें तो 2 से 3% का हमें यहाँ से नेगेटिव असर इम्पैक्ट देखने को मिली है। तो आप सर किस तरह से देख रहे हो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस? देखिए, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में अगर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो वैसे भी एक फील्ड हाई का स्ट्रक्चर था। इसमें ब्रेकआउट आया था स्टॉक में 900 रुपए के आसपास, लेकिन इमीडिएटली फेल करके वर्टिकली नीचे आ रहा था, और इस खराब न्यूज़ ने थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दिया है नेगेटिवनेस को। 823 एक मेजर सपोर्ट है, 823 निकलने के बाद स्टॉक में काफी डाउनसाइड बनेगी, 640 650 तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जिट कर लीजिए स्टॉक को। OFS वैसे भी डिस्काउंट में आता है और डिस्काउंट में आया ही है, तो और सप्लाई बढ़ जाती है स्टॉक की, तो 650 की प्रोबेबिलिटी मुझे हाई लग रही है। लेकिन 820 टूटने के बाद, तो अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो 820 टूटने का वेट कर लीजिए। बट आपकी जगह मैं होता तो मेरे को चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत वीकिश काइंड ऑफ लग रहा है। 650 हाई प्रोबेबिलिटी एरिया दिख रहा है टेस्ट होता हुआ। मैं करेंट मार्केट प्राइस से एग्जिट करने की कोशिश करता। ओके, तो एग्जिट की सलाह यहाँ से आपको बन रही है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के लिए। साथ में एक टाटा एलेक्सी का एक आज जो उनका Q1 का कुछ अपडेट आया था कि उनका जो रिजल्ट आया उनमें जो स्पेसिफिक मैं बात करूँ उनकी जो आई की उनका जो सिर्फ 2.3% बढ़ा है, पर उनका जो प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6.5% का हमें यहाँ से जो ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो यहाँ से हमें कमजोरी देखने को मिली। पर EBITDA और साथ में मार्जिन दोनों में हमें प्रेशर देखने को मिला है, और उसकी वजह से हमें मार्केट में 2 से 3% की हमें कमजोरी भी देखने को मिल रही है। तो टाटा एलेक्सी का चार्ट सर आपको किस तरह से लग रहा है? देखिए, टाटा एलेक्सी का चार्ट वीक लग रहा है। मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम पे वीकनेस है। वीकली पे थोड़ा सा रिवर्सल जरूर है। एक एरिया है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना है। ये ऑलमोस्ट 2023 में भी सपोर्ट बनाया था, 2024 में भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना है, वो है 6900 का। तो अगर इन यानी कि 6900 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो क्लियरली स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। 5800 5900 तक आता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा पोर्टफोलियो और PMS स्टॉक है, तो अगर एग्जिट कर रहे हैं तो फटाफट नीचे 5900 6000 की रेंज में वापस एंटर भी कर लीजिएगा। स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में तेजी रह सकती है, बट शॉर्ट टर्म में अभी वीकनेस दिख रही है, और यहाँ से 1000 रुपये नीचे की डाउनसाइड दिख रही है स्टॉक में। ओके, तो यहाँ से और डाउनसाइड हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर हमने ऐसे अभी रिजल्ट की बात की है तो मैं दूसरा एक स्टॉक आपसे चर्चा करना चाहूँगा, केशोराम इंडस्ट्री, कि जहाँ पे अभी हमें एक रिजल्ट की इम्पैक्ट देखने को मिली है कि उनकी जो आवक है यानी कि आय जो 12% से बढ़ी है, और कंपनी ऑलरेडी खोट में थी, यानी कि यहाँ से कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी, जो ऑलमोस्ट 33% उनका लॉस था, 33 करोड़, जो बढ़ के 91% बढ़ा है, और अराउंड 62 करोड़ उनकी लॉस आई है। और सामने उनकी EBITDA की बात करूँ तो 32% उनका EBITDA डाउन हुआ है, और उनका मार्जिन जो 10.5% था वो घट के 8% हो चुका है। यानी कि यहाँ पे भी हमें ओवरऑल कमजोरी देखने को मिल रही थी रिजल्ट में, और ऐसा ही आज हमें उसके जो एक्शन में भी ऐसा दिख रहा है उसके शेयर के। तो आप सर किस तरह से देख रहे हो केशोराम इंडस्ट्री? देखिए, केशोराम इंडस्ट्री का चार्ट स्ट्रक्चर मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, और सनटेक रियलिटी में भी 2 क्वार्टर नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया था, और अब देखिए स्टॉक कहां से कहां आ गया है। तो सिमिलर चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि नेगेटिव रिजल्ट के बाद भी अगर ये स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है, क्योंकि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट 180 पे आया है। उसका टारगेट 280 290 के आसपास है, जो अभी टारगेट काफी दूर है। तो एक रिएक्शन देखना होगा कि रिएक्शन किस हिसाब का आता है। अगर नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता है, न्यूट्रल टू पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, तो फिर स्टॉक मुझे 280 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन 1-2 दिन में पुअर होता है और स्टॉक में ब्रेकडाउन आना स्टार्ट होता है, तो फिर मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे स्टॉक में तेजी दिख रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा 1-2 दिन आप पहले रिजल्ट का रिएक्शन प्रॉपरली देख लीजिए कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर न्यूट्रल रिएक्शन भी रह जाता है तो स्ट्रक्चर के साथ जाऊंगा, जो पॉजिटिव दिख रहा है 280 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो 280 तक का टारगेट यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है।
अगर बीच में अभी हमने ग्लेनमार्क फार्मा की बात की है, तो मैं साथ में आपको एक फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर की आपसे बात करना चाहूँगा कि लास्ट हम 1-2 वीक से देखें तो फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर दोनों में हमें अच्छा खासा बजिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हमें देखा तो फार्मा सेक्टर एंड साथ में बोलूँ तो हेल्थ केयर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में हमें थोड़ी यहाँ से बेचवाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ से ऐसा मान लें कि यहाँ से क्या थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या फिर इसको हम टेम्पररी समझ के यहाँ से भी हम इसको बुलिशनेस व्यू रख सकते हैं। आपका किस तरह का व्यू है सर फार्मा को लेकर एंड हेल्थ केयर को लेकर सर? देखिए, फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, और चूंकि हम स्पेसिफिक स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। सिनेक्स फार्मा में 3 महीने की टाइट क्लोजिंग थी, 4 महीने की टाइट क्लोजिंग थी। जून के महीने में फाइनली ब्रेकआउट आया और जुलाई के महीने में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो यहाँ से फार्मा इंडेक्स जो है वो अगले 2 से 3 महीने मुझे काफी बुलिश दिख रहा है। 20,600 की प्राइस चल रही है, लगभग 22,500 से 23,000 तक का टारगेट दिख रहा है। तो 10% की तेजी अगर इंडेक्स में आती है तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी जो आउट परफॉर्म करेंगे वो 25-30% चल सकते हैं, जो अंडर परफॉर्म करेंगे वो 8-9% चलेंगे, लेकिन चलते हुए दिख रहे हैं। फार्मा इंडेक्स में 10% की तेजी दिख रही है। टॉप पिक मेरी इस सेक्टर में मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी रिकमेंड किया और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी रिकमेंड किया है कि मुझे एसएमएस फार्मा काफी तेज लग रहा है। एसएमएस फार्मा में ब्रेकआउट आया था 48 डेज का 217 रुपए पे, 300 रुपए का टारगेट है, 250 रुपए भी स्टॉक आया है। 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट बनता है 255-258 के ऊपर, तो 300 रुपए का टारगेट ना सिर्फ टेस्ट होगा, एक्सीड करते हुए 340 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फार्मा सेक्टर में तेजी है, उसको ध्यान में रखते हुए स्मॉल कैप फार्मा में एसएमएस फार्मा प्ले करना चाहिए लॉन्ग साइड में। ओके, तो फार्मा सेक्टर में स्पेसिफिक एसएमएस फार्मा है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कि 250 के पार आपको यहाँ से 300 और उसके अपसाइड आपको 340 तक का भी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक रेमंड सर आज आपको एक देखने को मिला तो एक बजिंग था कि उनमें कुछ डीमर्जर का न्यूज़ था कि उनका जो लाइफस्टाइल बिजनेस है उन्होंने यहाँ से कुछ अलग कर दिया है, यानी कि उनका जो लाइफस्टाइल जो बिजनेस है वो अलग कारोबार कर गया और उसके अलावा बाकी जो कारोबार है वो अलग यहाँ से एंटिटी हमें बनती हुई देखेगी। तो उसको देखते हुए आज मार्केट ने अच्छा उसको एंटीसिपेट दिया है। ऑलमोस्ट जिस तरह से जो वो ऑलमोस्ट देखे थे डीमर्जर का प्रोसेस आज हुआ जो एक्स डेट थी, उसके बाद जैसे ओपन हुआ तुरंत हमें अपर सर्किट में वो बंद हुआ है आज ऑलमोस्ट। तो रेमंड सर आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए, रेमंड्स में काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर था। अभी चूंकि आज ही के सेशन में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है, मेरे पास एडजस्टेड चार्ट नहीं है, लेकिन जो अनएडजस्टेड चार्ट था प्रीवियसली उसमें बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया था 2300 रुपए में, जिसका टारगेट लगभग 4000 के आसपास था। तो कल के सेशन में चार्ट एडजस्टेड हो जाएगा, बट जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है आज के सेशन की, कंटिन्यूएशन ऑफ अपमूव दिख रहा है, चार्ट में बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 10 से 15% तक की अपसाइड बहुत आराम से बनती हुई दिखेगी स्टॉक में। ओके, एंड लास्ट सर मैं आपसे टीसीएस डिस्कस करना चाहूँगा कि टीसीएस का जो उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं और उसका कुछ अनुमान भी ऐसा कुछ है कि अराउंड उसकी जो आय है उसमें 2 या 2.5% का हमें यहाँ से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका जो मार्जिन है उसमें कुछ 130 बेसिस पॉइंट का यहाँ से हमें जो डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो जो ऑब्वियसली जो एक बार तो आ जाएगा रिजल्ट उसके जो मार्केट बंद होने के बाद, तभी हम उसका जो भी रिजल्ट होगा वो कल तो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगी। परंतु स्वाभाविक है कि एक दिग्गज कंपनी है आईटी कंपनी की, तो हम एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं कि उसमें किस तरह का एंटीसिपेट दिख रहा है सर। देखिए, आईटी इंडेक्स में 17 महीने का बेस ब्रेकआउट था, 3 महीने का रीटेस्ट हुआ है, जून में रीटेस्ट कंप्लीट होके फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, जुलाई में फॉलो थ्रू मूव आ रहा है। तो मुझे आईटी एज एन इंडेक्स या सेक्टर पूरा काफी तेज लग रहा है। अगले 3-4 महीने अच्छी रैली रह सकती है। इन्फोसिस और साइंट हमारे टॉप पिक है, लेकिन टीसीएस का चार्ट इक्वली अच्छा लग रहा है, बट चूंकि इवेंट सामने खड़ा है, अनसर्टेनिटी हाई है, मैं रिजल्ट्स का रिएक्शन देखना पसंद करूंगा, उसके बाद मैं फ्रेश व्यू लूंगा। लेकिन एज एन होल इंडेक्स अगर मैं देखूं तो इंडेक्स में काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है अगले 3-4 महीने। तो टीसीएस के रिजल्ट मोस्ट लाइकली अच्छे आने चाहिए और अच्छा रिएक्शन होना चाहिए, बट अगर ये क्या आएगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव साइड में। ओके, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ से पॉजिटिव साइड में है और आपने सही कहा कि अगर अच्छे ही आने चाहिए, अगर अच्छे नहीं आए उसके रिवर्स आए तो जिस तरह से हमने देखा है कि लास्ट 1 महीने में ऑलमोस्ट 7% निफ्टी आईटी बढ़ा है। तो अगर ऐसे आईटी कंपनी के अच्छे परिणाम नहीं आए तो उस हिसाब से हमें उसी स्पीड से हमें यहाँ से गिरते भी देख सकते हैं, लेकिन वी कैन थिंक पॉजिटिव। तो अंशुल जी, यहाँ पे समय हुआ है रजा लेने का, हमने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए, तो आपकी तरफ से सर डिस्क्लोजर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं इसमें से कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है,
लेकिन चूंकि हम ब्रोकिंग हाउस में अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म डिलीवरी रिकमेंड करते हैं और पिछले 10-15 दिन में 140-145 डिलीवरी कॉल्स इनिशिएट किए हैं, तो एग्जैक्टली सारे नाम याद रखना तो मुश्किल है। SCI, NFL, RCF ये मेरे को याद थे तो मैंने तुरंत ही डिस्क्लेमर दे दिया है। लेकिन सारे स्टॉक्स जितने हमने डिस्कस किए हैं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है और हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी रिकमेंड भी जरूर की होगी, क्योंकि ब्रेकआउट के आसपास सारे स्टॉक्स थे। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक ओके, खूब खूब આભાર અંશુલજી આપકા અમારા શો में आने के बदल और चर्चा में भाग लेने के बदल। તો આ સાથે જ આપણે ભારતીય માર્કેટની તમને એક વખત અપડેટ આપી દઉં તો આપણે ઓપન તો આપણે ફ્લેટ થયા, જે બાદ આપણને સારી એવી નફા વસૂલી પણ જોવા મળી સતત બીજા દિવસે, પરંતુ આજે બીજા દિવસે આપણને સારી એવું નીચલા સ્તરથી આપણને રિકવરી પણ જોવા મળી છે અને સાથે સાથે બેંક નિફ્ટીમાં જે એક સપોર્ટ હતો જે કન્ટિન્યુ આપણને એક અહીંયાથી હડેલ જોવા મળી રહ્યો છે કે જેની ઉપર આજે આપણે કારોબાર બંધ થયો છે, જે ઓલમોસ્ટ હું તમને વાત કરું તો 52,300ની નજીક આપણે કારોબાર બંધ થયો છે, જે એક સારી એવી બાબત છે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટી બંને માટે। સાથે સાથે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ સતત ત્રીજાથી ચોથો દિવસ એવો હશે કે જેમાં આપણને 5%થી વધુની મજબૂતી સાથે આપણને ક્લોઝિંગ આપ્યું છે। એટલે સાથે સાથે આપણે ઘણા એવા સેક્ટર હતા કે જે આપણને મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપને આજે આપણે સપોર્ટ કરે છે। તો સેક્ટર તમને બતાવી દઉં કે કયા સેક્ટર છે કે જેમાં આજે આપણે સારી વધારો જોવા મળ્યો છે। તેમાં ખાસ કરીને હું તમને વાત કરું તો એક તો નિફ્ટી પીએસસી, નિફ્ટી પીએસયુ બેંક કે એવા ઘણા સરકારી સ્ટોક હતા કે જેમાં આજે આપણને સારી એવું બઝિંગ જોવા મળ્યું હતું, પરંતુ ઘટવાવાળા સેક્ટરની વાત કરું તો જેમાં નિફ્ટી ફાર્મા, નિફ્ટી હેલ્થકેર કે ઘણા એવા સેક્ટર હતા કે જેમાં આજે આપણને થોડીક નરમાશ જોવા મળી છે, પરંતુ ઓવરઓલ આજનો દિવસ આપણે સારો રહ્યો એવો કહી શકાય છે। તો આ સાથે સમય થયો છે રજા લેવાનો, મને યોમિકને આપશો રજા અને આગળના સમાચાર માટે જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત। ક્લોઝિંગ કેપિટલ ના પ્રાયોજક છે ટ્રેડ બુલ્સ, અબ ટ્રેડિંગ સબકે બસ